فلم کے آغاز میں ہم ایک لڑکی کو بیلے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ڈانس کلاس کے بعد وہ اپنی بڑی گاڑی میں بیٹھتی ہے اور اپنے محل کی طرف روانہ ہو جاتی ہے، اور اسی وقت ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ 6 لوگ اس لڑکی، جس کا نام ابیگل ہے، پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ گاڑی کا پیچھا کرتے ہیں اور ابیگیل کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، جس کے بعد ان لوگوں نے اسے بے ہوش کر دیا، لیکن اصل مقصد اسے یہاں سے نکالنا تھا۔ ابیگیل کے والد کے گھر پہنچنے کے بعد یہ لوگ پکڑے جانے والے تھے، لیکن وہ ایک پرانے محل میں نہیں آتے۔ ابیگیل کے اغوا کے بعد، جہاں اغوا کا ماسٹر مائنڈ لیمبرٹ پہلے ہی انہیں کھانا کھلا رہا تھا، اس نے منصوبہ بنایا تھا کہ ابیگیل کو اغوا کرنے کے بجائے وہ اس کے امیر والد سے $50 ملین کا مطالبہ کرے گا۔ پیسے ملنے کے بعد وہ ان کو ان کا حصہ دے گا، لیکن تب تک ان 6 لوگوں کے گروپ کو ابیگیل کو اس محل میں قید رکھنا تھا۔ اغوا کے بعد ابیگیل کی حفاظت بھی اسی کی ذمہ داری تھی، اور سب سے اہم بات، لیمبرٹ نے انہیں بتایا کہ یہاں ایک اصول ہے، کوئی بھی اپنا اصلی نام کسی کو نہیں بتائے گا۔ سب لوگ ایک دوسرے کو نقلی ناموں سے پکاریں گے جو لیمبرٹ نے انہیں دیے ہیں۔ لیمبرٹ نے ان کے فون بھی لے لیے تھے تاکہ پولیس انہیں ٹریک نہ کر سکے، اور جانے سے پہلے اس نے انہیں ایک آخری ہدایت دی کہ ابیگیل کی آنکھوں پر پٹی بندھی رہے گی اور جوائے کے علاوہ کوئی بھی اس کے کمرے میں نہیں جائے گا۔ اسے یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے لوگوں نے اسے اغوا کیا ہے۔ لیمبرٹ نے ابھی تک انہیں یہ نہیں بتایا۔ جس کی بیٹی ابیگیل ہے وہ کون ہے، یہ ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا۔ وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ ابیگیل کا والد ایک کروڑ پتی ہے۔ لیمبرٹ کی موت کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں اندازے لگانا شروع کرتے ہیں۔ جوائے لوگوں کو پہچاننے میں ماہر تھی۔ اس نے فرانک کو ایک پولیس جاسوس کے طور پر پہچانا، اور یہ 100% درست تھا۔ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی ایک ہیکر تھی جو لوگوں کے اکاؤنٹس ہیک کر کے پیسے کی کمی پوری کرتی تھی۔ اس نے صرف سنسنی کے لیے اس مشن کا انتخاب کیا تھا۔ اور آخر میں سنائپر۔ یہ سب سننے کے بعد جوائے ابیگیل کے کمرے میں جاتی ہے اور اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دیتی ہے۔ اس نے لیمبرٹ کا اصول توڑ دیا۔ ابیگیل کو آرام دینے کے لیے وہ اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اور نہ کسی اور کو پہنچانے دے گی۔ ان دونوں میں اچھا تعلق بن جاتا ہے۔ جوائے کہتی ہے، ابیگیل، میرا بھی تمہاری عمر کا ایک بیٹا ہے۔ ابیگیل کو یہ پسند نہیں آتا۔ وہ کہتی ہے، تم اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہوگی، لیکن میرے والد عجیب، غصے والے اور خطرناک ہیں۔ وہ مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی پہلے کرتے تھے۔ ابیگیل اسے خبردار کرتی ہے کہ آج رات کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ جوائے کو یہ بات عجیب لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ابیگیل کا باپ ایک خطرناک شخص ہے۔ آخرکار ہم نے فون ٹیپنگ کی تھی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے کس کی بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ فرانک ابیگیل کے کمرے میں جاتا ہے اور اس کے والد کا نام پوچھتا ہے۔ ابیگیل کے والد کا نام سن کر وہ گھبرا جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین نہیں آتا کہ اس نے ایک بہت بڑے گینگسٹر کی بیٹی کو اغوا کر لیا ہے۔ وہ یہ بات سب کو بتاتا ہے اور سب حیران رہ جاتے ہیں۔ فرانک اپنا تجربہ شیئر کرتا ہے کہ کیسے ایک بار 3 افسران نے اس گینگسٹر کے خلاف کام کیا تھا۔ اس کے بعد تینوں افسران کو دھمکیاں ملنے لگے۔ ان کی حفاظت کے لیے انہیں سب سے محفوظ کمرے میں رکھا گیا۔ کمرے کے سامنے 24/7 سیکیورٹی تھی، اور کمرے میں داخل ہونے کے صرف 2 راستے تھے، ایک کھڑکی اور ایک دروازہ۔ کھڑکی سے داخل ہونا ناممکن تھا، لیکن جب صبح دروازہ کھولا گیا تو تینوں افسران مردہ پائے گئے۔ یہ ان کے لیے ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ یہاں سب دہشت زدہ تھے سوائے ڈرائیور کے۔ کچھ دیر بعد وہ تہہ خانے میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کسی نے اس پر حملہ کیا ہے۔ وہ زور سے چیختا ہے اور ہیکر اس کی چیخ سنتا ہے۔ وہ دیکھنے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کسی نے ڈرائیور کی گردن کاٹ دی ہے۔ وہ واپس آ کر سب کو بتاتا ہے کہ ہم پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں یہاں سے بھاگ رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ اور فرانک اس محل سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، جدید سیکیورٹی سسٹم فعال ہو جاتا ہے۔ کھڑکیوں اور دروازوں کے سامنے دھاتی شیلڈز آ جاتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ یہاں پھنس چکے ہیں۔
इन लोगों को ये भी मालूम हो जाता है कि इमारत में एक कातिल है जो उन्हें मारने वाला है। उसीलिए ये लोग महतात हो जाते हैं। जुवाए अबीगिल से पूछती है कि क्या वो इन हमलों के बारे में कुछ जानती है। अबीगिल उसे बताती है कि फ्रांक मेरे वालिद का आदमी है। अबीगिल कहती है, मैं ये किसी को नहीं बताना चाहती थी। ये सुनते ही जुवाए को गुस्सा आ जाता है। फ्रांक के पास जाने से पहले वो मड़कर देखती है कि स्नाइपर को कत्ल कर दिया गया है। इसके साथ इतना बुरा सलूक किया गया था कि उसका चेहरा फट गया था। जवाए और भी ज्यादा डर जाती है और फ्रांक पर बंदूक तान लेती है। फ्रांक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लड़की हमारे साथ खेल रही है, वो झूठ बोल रही है, लेकिन जवाए उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। अबीगिल डरी हुई थी और अपने हथकड़ियां भी उतार रही थी। अगले ही लम्हे वो एक वेम्पायर में तब्दील हो चुकी थी। इसे देखकर सब लोग खौफजदा हो जाते हैं। फ्रांक उसे गोली मार देता है, लेकिन अबीगिल फौरन ठीक हो जाती है। ये देखकर सब डर जाते हैं। वो बाहर आकर उसके कमरे को बंद कर देते हैं। अबीगिल को देखकर इन्हें बहुत से राज समझ आ जाते हैं कि न सिर्फ अबीगिल बल्कि उसका बाप भी एक वेम्पायर है। उसीलिए सब उससे डरते हैं और जितने भी कत्ल हुए हैं वो सब अबीगिल ने किए हैं। अगर उन्हें जिंदा रहना था तो उन्हें अबीगिल को मारना था। कोई लहसुन पकड़ता है, कोई तेजधारी हथियार बनाता है ताकि इस वेम्पायर यानी अबीगिल को मार सके। लेकिन जवाए इन सब की हमायत नहीं कर रहा। इसका मानना है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें अबीगिल से मुकाबला नहीं करना चाहिए। बहरहाल वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। वो जवाए और अबीगिल के कमरे का दरवाजा खोलते हैं जहां अबीगिल स्नाइपर की लाश के साथ नाच रही थी। वो अबीगिल पर पीछे से हमला करते हैं, लेकिन अबीगिल खुद अन पर हमला कर देती है। लहसुन और सलीब का इस पर कोई असर नहीं होता। बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाकर अबीगिल के कमरे से बाहर निकलते हैं। जवाए उन्हें मशवरा देता है कि हमें इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अबीगिल को बेहोश किया जा सके। ये इंजेक्शन उसे पहले भी बेहोश कर चुका था। वो दौड़ने लगते हैं, लेकिन अबीगिल को पकड़ना आसान नहीं था। अबीगिल अब भी सबके एसाब पर सवार थी, लेकिन उनके ग्रुप का गैंगस्टर किसी तरह अबीगिल को पीछे से पकड़ लेता है और जवाए उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा देता है। इस तमाम अफरातफरी में अबीगिल को एक साथी ने भी जख्मी कर दिया। सबको खौफ था कि वो लड़की भी वेम्पायर बन जाएगी। फिर ये पता चलता है कि जब अबीगिल को होश आया तो वो खुद को जेल में पाती है। वो अबीगिल से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि वो क्या चाहती है, और यहाँ उन्हें सबसे खतरनाक हकीकत का पता चलता है कि दरअसल उन्होंने अबीगिल को अगवा नहीं किया, बल्कि अबीगिल ने उन्हें अगवा किया है। ये सब अबीगिल का मंसूबा था और लैम्बर्ट अबीगिल के लिए काम करता था। देखो, अगरचा अबीगिल एक छोटी लड़की है, लेकिन वो इस दुनिया में 100 साल से रह रही है। वो इन्हें बताती है कि तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुमने किसी तरह मेरे वालिद को नुकसान पहुंचाया है। ये हैकर अबीगिल के वालिद का अकाउंट हैक करके उससे लाखों डॉलर चरा लेता है। फ्रांक ने अबीगिल के वालिद की तहकीकात की थी। जुवाए, जो कि एक फौजी डॉक्टर था, ने नशे की हालत में अबीगिल के वालिद का गलत ऑपरेशन किया था, जिससे उसके वालिद को बहुत तकलीफ पहुंची थी। ये सुनकर जवाए उसे बताता है कि उसे मालूम है कि अबीगिल के वालिद अब उससे मोहब्बत नहीं करते और वो उसे देखना भी नहीं चाहते। ये सब सुनने के बाद वो सब यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। यहाँ से निकलने के लिए उन्हें रास्ता तलाश करना था। 3 लोगों और फ्रांक की जिम्मेदारी थी कि वो अबीगिल पर नजर रखे। इस दौरान अबीगिल फ्रांक के साथ एक मुआहदा करती है। वो उसे बताती है कि अगर वो उसे यहाँ से बाहर निकाल दे तो वो उसे जिंदा छोड़ देगी और बाकी सबको खा जाएगी। ये सब सुनने के बाद फ्रांक से इस इमारत से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। जवाए उसे बताता है कि लाइब्रेरी में एक किताब है जो तमाम सिक्योरिटी सिस्टम्स को गैर फाल कर देगी। ये सुनकर फ्रांक अबीगिल के माहदे को तोड़ देता है और अपने साथियों को बाहर निकलने का रास्ता बताता है, लेकिन गुस्से में अबीगिल अपना पंजरा तोड़ देती है और उस पर हमला करती है। वो फ्रांक को मारने ही वाली थी कि इन वक्त पर जवाए एक खिड़की तोड़ देता है।
सुबह हो रही थी और अबीगिल के हाथ पर सूरज की रोशनी पड़ती है, जिससे वो झलस जाती है। अबीगिल एक तारीक जगह में छुप जाती है ताकि अपने आप को ठीक कर सके। कुछ देर के लिए वो अबीगिल से दूर हो जाते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी हो रही थी। लेकिन जितना भी वक्त वो यहाँ रहते, उन्हें अबीगिल का सामना करना ही था। उन्हें बाहर निकलने का रास्ता तलाश करना था। जब वो बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं, तो बेगिल इस लड़की के दिमाग पर काबू पाना शुरू कर देती है जिसे उसने काटा था। अपनी ताकतों से एबिगेल इस लड़की को एक वैम्पायर में तब्दील कर देती है और सबसे पहले वो उसे अपने साथी को मारने का हुक्म देती है। इसके हुक्म पर इस लड़की ने पहले ही ये काम कर लिया था, यानी उसने पहले ही अपने साथी को मार दिया था। जवाए, जो ये सब कुछ दूर से देख रहा था, उसे मारने से पहले जवाए एक आईने के जरिए इस लड़की पर सूरज की रोशनी मुनाकिस करता है। जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, वो बम की तरह फट जाती है। सब मर जाते हैं सिवाय फरांक और जवाए के। फरांक लाइब्रेरी में जाता है और अबीगेल की किताब से मदद लेता है। अंदर एक कंट्रोल रूम होता है जहां वो लैम्बर्ट को बैठा देखता है। फ्रांक बगैर वक्त जाया किए लैम्बर्ट को गोली मार देता है, लेकिन लैम्बर्ट फौरन ठीक हो जाता है। लैम्बर्ट को याद आता है कि 2 साल पहले उसे वैम्पायर में तब्दील कर दिया गया था और तब से वो अबीगेल के लिए काम कर रहा है। वो हर इस शख्स को पकड़ता है, वो लोग जिन्होंने अबीगेल के वालिद को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद अबीगेल इस मेंशन में लोगों को ज़हनी तौर पर कंट्रोल करती है, उनके साथ जज्बाती खेल खेलती है, इन्हें कत्ल करती है और अपनी ख्वाहिशात पूरी करती है। अब लैम्बर्ट भी अबीगेल के लिए काम करने से थक चुका था। उसको फ्रैंक की हमायत चाहिए थी। उसको ऐसे फ्रैंक की हमायत चाहिए थी कि वो पहले फ्रैंक को कत्ल करे और उसे वैम्पायर में तब्दील करे। उसके बाद वो अबीगेल को कत्ल करे और फिर अबीगेल के वालिद को, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर था। उसके बाद वो सब कुछ मुलक करता। फ्रैंक को इसकी पेशकश से कोई एतराज नहीं था, तो फ्रैंक इस पर मुत्तफक होता है। जैसे ही वो वैम्पायर बनता है, वो लैम्बर्ट को दिल में चढ़ा देता है और इसे कत्ल कर देता है। लैम्बर्ट के मंसूबे के मुताबिक इसका मकसद था कि अबीगेल के वालिद की तमाम दौलत ले ले। फ्रैंक को महसूस हो रहा था कि वो बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। उसके जिस्म खुद ठीक हो गए थे। जब वो अबीगेल को मारने जाता है, तो अबीगेल और लैम्बर्ट के दरमियान एक झगड़ा हुआ था। अबीगेल अब फ्रैंक के साथ झगड़ रही थी क्योंकि फ्रैंक इससे बड़ा था। दूसरी तरफ हम जोई को देख रहे थे, जो यकीन कर रही थी कि वो जिंदा नहीं रहेगी। वो इस जगह से भागकर अपनी बेटी को कॉल करने लगता है। वो बस ये कह रहा था कि फ्रैंक उसके पीछे हमला आता है। वो उसे मारता है, तशद्दुद करता है, लेकिन उसे नहीं खाता। नतीजतन जोई एक वैम्पायर बन जाता है। इस दौरान अबीगेल यहाँ आती हैं, जो जोई को एक वैम्पायर बनाती है और उसके साथ मुआहदा करती है कि फ्रैंक को मार दे, जैसा कि फ्रैंक ने लैम्बर्ट के साथ अबीगेल को मारने के लिए मुआहदा किया। लेकिन कहानी में एक मुरूर था। जोई फ्रैंक के छुड़ाए जाने की बना पर एक वैम्पायर बनता है, तो फ्रैंक उसे कंट्रोल कर सकता था। फ्रैंक उसे अबीगेल को मारने की हुक्म देता है। अबीगेल उस वसीले से फ्रैंक को कत्ल कर देती है, एक हथियार से। इसे जख्मी करके फ्रैंक भी पहले वैम्पायर की तरह हिलाक हो जाता है। अब बाकी रहने वाले अबीगेल और जोई थे। अब जोई की बारी थी, मगर अबीगेल ने उसे नहीं मारा क्योंकि जोई का पहले ही अबीगेल के साथ अच्छा ताल्लुक था। इसीलिए अबीगेल जोई के साथ बांधने लगी थी। वो जोई से कहती है, तुम आजाद हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम मरने के बाद एक वैम्पायर हो जाओगे जोई। जो तुम एक वैम्पायर बने थे कि बना पर, वो वैम्पायर अब हिलाक हो चुका है। तुम पहले की तरह इंसान बन जाओगे। जोई यहाँ से भागने वाला था। इसी दौरान अबीगेल के वालिद दाखिल होते हैं। इसने अपना रात का खाना मुफ्त में हासिल किया। अबीगेल अपने वालिद को रोकती है और कहती है, पापा तुम उसे नहीं खाओगे, उसने मेरी जान बचाई है। जोई अबीगेल को कत्ल करता है। जोई अबीगेल से कहता है कि जाओ। जोई भागता है। हम उसे एक मामूली जिंदगी गुजारते हुए देखते हैं। यह फिल्म का खत्म होता है।